Hello, good morning, good afternoon, happy Republic Day. Good afternoon. Let's wait for some students to join in. Join in. Let's wait for the students to join in. Hello, hello, hello. Hi, Saurabh. Hello, everyone. We are waiting for some more students to join in. Let me post in the community that we are live. Hi, Jatin. Hello, hello. Good evening, good afternoon. Good afternoon, Jatin. Good afternoon, Saurabh. I'm just posting on the group. Give me a second, please. Hi, Vaishnavi. Hi, Jatin. Hi, Saurabh. Hi, everyone. Happy Republic Day. Happy Republic Day to all of you. Good afternoon, Jatin. Good afternoon. Good afternoon. And with the Republic Day, I have a special Republic Day offer for all of you. This is basically valid for plus subscription and trust me, ये तुम लोगों के लिए एकदम लूट लो ऑफर है. ठीक है, क्यों? क्योंकि I would always suggest and I have always suggested all my students to take a combo offer जहाँ पे CSEET प्लस CS एग्जीक्यूटिव की क्लासेस आप साथ में ले सकते हो. 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे, 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, मतलब 1.5 साल, विच मीन्स यू कंप्लीट योर एंटायर CS एग्जीक्यूटिव योर. Okay, so take the offer. Use my code, guys and girls. My code is Neha CS. Okay, it has to be in continuation. There is no gap. Neha CS, and you get additional 10% discount. इसके अलावा क्या मिलेगा? You get access to my exclusive doubt solving group. ठीक है, you get access to वीकली ट्रैकर्स जहां पे मैं आपको भेजती हूँ कि आपको इस हफ्ते क्या पढ़ना है. You get access to my daily gyan that I share on the group, where I keep sharing a lot of posts on board. Like right now a company law series is going on, जहां पे मैं कंपनी लॉ के बारे में बता रही हूँ छोटी छोटी बातें, ताकि आपको वो सब चीजें क्या हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद होते जाए. So if you use my code and take the subscription, please ping me. ठीक है, I will add you to my exclusive doubt solving group, जहां पे मैं आपको वीकली ट्रैकर शेयर करने वाली हूँ, जहां पे मैं आपके साथ टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ. And not to forget, I would be holding your hand not just for foundation but for executive for doubt solving. So बढ़िया ऑफर है, कल तक ऑफर है, जनवरी 27. द बेस्ट ऑफर आई कैन से फॉर CSEET स्टूडेंट, क्योंकि तुम कॉम्बो पैकेज ले लोगे इस पर्टिकुलर केस में. चलो अब हम चालू करते हैं आज की क्लास, आज की कक्षा. ठीक है, इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैनर. गाइज एंड गर्ल्स, इफ यू रिमेंबर, I have already done what? I have already taught you the basics of law. ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं. About me, my name is CS Neha Ladda. I've done CS, MBA and MCom. Have a total teaching experience of 14 years, and I've taught for courses like CA, CS, CEWA and international courses like ACCA, CIMA. I have mentored more than 25,000 students, and I have written 5 books, okay, for CS and MBA students. Apart from this, जो institute का material होता है उसके लिए भी I have created content. Okay, one of the chapter is written by me. ये था मेरा छोटा सा introduction. Guys, I would be in CSEET. I will be taking for you legal aptitude. ठीक है, मैं आपको legal aptitude पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पर. And for CS executives, I would be taking for you company law and JIGL. ये दोनों सब्जेक्ट
मैं ही आपके लिए लेने वाली हूँ। जब प्रोफेशनल में आओगे तो प्रोफेशनल के भी सब्जेक्ट बता दूंगी कि कौन से सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास फॉर द टूम। मैम मेरे पास 2021 के नोट्स है, वो चल जाएंगे क्या? भारती, यू डोंट नीड एनी नोट्स, क्योंकि नोट्स मैं दूंगी आपको। आई विल बी प्रोवाइडिंग द नोट्स। ये नोट्स नहीं है, ये डेफिनेटली नोट्स नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी कम्युनिटी पे, ठीक है, आई विल बी अपलोडिंग द नोट्स ऑन द कम्युनिटी। तो डू फॉलो मी ऑन द कम्युनिटी टू गेट एक्सेस टू द नोट्स, है ना। माय नेम इज, कम्युनिटी आईडी वुड बी नेहा लड्डा, सर्च करना, यू कैन फॉलो मी देयर। फ्री में आई विल प्रोवाइड यू ऑल द रिसोर्सेज, ओके, प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपको लीगल एप्टीट्यूड की चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ नोट्स ही प्रोवाइड नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। देयर वुड बी अ रिवीजन सीरीज व्हिच वुड बी हैपनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हिच वुड बी हैपनिंग ऑन यूट्यूब चैनल। इसके बाद मैं आपके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, व्हिच वुड बी अराउंड 500 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक, ठीक है, 300 to 500 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक। इससे ज्यादा क्वेश्चन तुम एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट करते हो, मुझे जरूर बताना। इसके बाद भी हम आईसीएसआई के मॉक पेपर्स सॉल्व करने वाले, ठीक है, वी वुड बी सॉल्विंग द मॉक पेपर्स, एंड ऑब्वियसली आई वुड बी टेलिंग यू ग्रेट ट्रिक्स इन ऑर्डर टू रिमेम्बर द टॉपिक्स, ठीक है। टॉपिक्स याद करने के बहुत यूनिक तरीके मैं आपको सिखाऊंगी, ताकि आपको चीजें ऐसी की ऐसी याद हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज से आज, ठीक है। आप सबको पता है आपके लीगल एप्टीट्यूड चैप्टर सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वी आर सपोज टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड, वी आर सपोज टू स्टडी टॉर्ट, ठीक है। थर्ड, वी आर सपोज टू स्टडी कंपनी लॉ, ठीक है, कंपनी लॉ। ऑब्वियसली दो और है, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशंस, एंड लास्ट वन इज व्हाट इज योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये दोनों आपको आनंद सर पढ़ाएंगे, ठीक है, दिस वुड बी टॉट बाय आनंद सर। These three chapters which are main chapters would be taught by me, ठीक है, I would be teaching। आज हम शुरू कर रहे हैं, श्री गणेश हो रहा है हमारा कंपनी लॉ से, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विथ कंपनी लॉ टुडे। क्लास चालू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, दैट इज जब भी जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आए, प्लीज मुझे डायरेक्टली क्लास में ही तुरंत पूछ लेना, ठीक है। क्यों मैम? इसलिए क्योंकि घर जाके फालतू डाउट पे टाइम वेस्ट ना हो। सेकंड, जब इस क्लास से जाओ तो सबका सब बहुत अच्छे से क्लियर हो, एवरीथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, एंड दैट आई एम रिक्वेस्टिंग यू। कुछ भी छोटा सा छोटा डाउट हो तो भी मुझसे पूछना, कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ आए तो भी मुझसे ही पूछना। आई बात समझ में? ये हो गया मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। अब हम कंपनी लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और उसमें मैं आपको एकदम बेस समझाने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। ये फर्स्ट क्लास है जतिन, यस दिस इज द फर्स्ट क्लास। इसके पहले मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि आपको कैसे पढ़ना है, और सेकंड जतिन मैंने ये बताया है सेकंड क्लास में कि बेसिक्स ऑफ लॉ बताया है, कुछ भी एक्ट रिलेटेड नहीं बताया कि इंडिया में लॉज कैसे बनते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्शन। तो वो जाके क्लास आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम देयर, ठीक है। आगे बात समझ में? ठीक है, बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको मुझे फॉलो करना है ऑन दी कम्युनिटी। आपको अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ताकि जब भी अपडेट्स हो तो आपको वहां पे सब मिलता जाए। चलो, L3E प्रेजेंट्स। मैम ये L3 क्या है? लर्न लॉ विथ लड्ढा इजीली, लर्न लॉ विथ लड्ढा इजीली, ठीक है। सो दैट इज द माय कंपनीज नेम, जो हम मूवी बना रहे हैं उस मूवी का है L3E प्रेजेंट्स। मेरा एक और मतलब है इसका, पता है, बहुत गहरा मतलब है। आपको लर्न करना पड़ेगा कुछ भी अर्न करने से पहले।
before earning anything, you have to learn. Only when you know things properly, you would be able to earn great. That's why learning is before earning. Okay, L is before E, and that's why it is L3E. L3E presents. L3E किसको लेके आया है आज? ठीक है, जैसे अन अकेडमी लेके आया था किसको? धोनी को। मैं लेके आई हूँ। देखा एड? देखा अन अकेडमी का एड? नहीं देखा है तो जरूर जाके देखना। अमेजिंग एड, अमेजिंग एड। क्या मोटिवेशन मिलता है। What a script written, what a acting by धोनी, everything is awesome। मतलब शायद कोई मूवी का एक्टर भी इतना अच्छा नहीं कर सकता जितना धोनी ने किया। एंड ऑब्वियसली credit goes to the Unacademy team for writing such a beautiful script which is very much related to students। ठीक है, हर चीज राख है तुम्हारी ताकत के आगे। ठीक है, you should see that ad, you should। ठीक है, you should see that ad। चलो, तो मेरी मूवी के हीरो है मेरे खुद के हीरो शाहरुख खान। आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान एंड काजोल। हमारी मूवी का नाम है कभी कंपनी कभी लॉ। ठीक है, बहुत मजा आएगा क्लास में पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। पढ़ने जैसा लेना ही मत, सिर्फ समझने बैठे हो, मूवी देखने आ रहे हो। फ्री का मूवी है भैया, टिकट भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, कभी कंपनी कभी लॉ। ठीक है, हमारी मूवी का नाम है L3E presents Shahrukh Khan and Kajol and the movie name is कभी कंपनी कभी लॉ। अब क्या हुआ सुनना जरा। तो क्या हुआ, शाहरुख और काजोल were born in the year 1956। दोनों कब पैदा हुए? 1956 में पैदा हुए। हिंदी नहीं आती। 1956 is when they were born। शाहरुख अपनी दुनिया में बिजी, काजोल अपनी दुनिया में बिजी। They have never ever met each other। दोनों एक दूसरे को कभी मिले ही नहीं थे। 2013 जब भी मेट, बोथ ऑफ देम मेट। ठीक है, फर्स्ट टाइम मिले। कितनी बजे? 2:20 पर दोनों मिले। शाहरुख ने काजोल को देखा, काजोल ने शाहरुख को देखा, दोनों ने दिल दे दिया। ये मत दिन गिनना 1956 2013। ओ ये तो इतने बूढ़े लोग हैं जो दिल दे रहे हैं। मत गिनना, मत गिनना। वो कारण है मैंने ये ईयर्स क्यों लिखे हैं, मैं आपको बताऊंगी बाद में। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने दिल दे दिया। बट अभी कुछ बोले नहीं क्योंकि शाहरुख को डर था काजोल चली न जाए, आई शुड नॉट लूज हर एज अ फ्रेंड। काजोल को डर था आई शुड नॉट लूज शाहरुख एज अ फ्रेंड। वो लोग क्या करने लगे दोनों? 2:20 पर 2:20 पे एवरी डे दे यूज्ड टू मीट। ठीक है, उनका फिक्स टाइम था 2:20 पर हम मिलेंगे। क्या करते हैं मिलके? दे यूज टू हैव फूड टुगेदर। ठीक है, खाना खाते थे साथ में, खाना खाते खाते बातें करते थे। एंड दे यूज टू डिस्कस आइडियाज कि यार ऐसा बिजनेस कर सकते हैं, ऐसी चीजें कर सकते हैं, ऐसा ये कर सकते हैं। क्या आपको मेरी स्टोरी की भूमिका समझ आई? टाइप यस इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई जस्ट नाउ सेड। 1956 is when Shah Rukh and Kajol were born। 2013 is when both of them met। ठीक है, उसके बाद हाँ सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अभी 5 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, 2:20 पे वो मिले और वो लोग अपना खाना खाते खाते बहुत सारे आइडियाज डिस्कस करते। बस मुझे ये लिख दो यहाँ पे, जतिन ने लिखा है, बाकी लोग क्या तुमको ये बात समझ आई जो मैंने लिखा? Did you understood what I wrote here? Did you understood that? अगर समझ आ गया, अगर आपको ये समझ आ गया है, the good news is आपको फर्स्ट टॉपिक ऑफ कंपनी लॉ समझ आ गया है। समझना फर्स्ट टॉपिक ऑफ कंपनी लॉ क्या कहता है। फर्स्ट टॉपिक ऑफ कंपनी लॉ कहता है मीनिंग ऑफ द टर्म कंपनी। मैं और डिटेल में तो अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन पहली बात समझना, शाहरुख और काजोल क्या करते थे? रोज साथ में खाना खाते थे। ठीक है, दे यूज्ड टू हैव फूड टुगेदर। अगर मैं कंपनी वर्ड की बात करूं बच्चा, सो कंपनी कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ठीक है, ये लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड कौन कौन से? कॉम और पनीस।
ठीक है। कॉम मीन्स टुगेदर। शाहरुख और काजोल क्या करते थे? साथ में। व्हाट दे यूज्ड टू हैव? फूड। साथ में, पनीस मीन्स फूड, मील्स। तो पीपल इन ओल्डन टाइम्स दे यूज्ड टू हैव द फूड टुगेदर, ठीक है, दे यूज्ड टू हैव देयर फूड टुगेदर। एंड जब वो लोग खाना खाते थे तो वो लोग बहुत सारे बिजनेस आइडियाज डिस्कस करते थे। जो लोगों के बिजनेस आइडिया सेम टाइप के होते थे या दिमाग मिलता था, समझ रहे हो, लगता था यार ये इसका विजन और मेरा विजन सेम है, इसकी सोच और मेरी सोच सेम है, हम दोनों लाइफ में सेम चीजें करने चाहते थे, वो लोग साथ में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते थे। और ऐसे जन्म हुआ वर्ड कंपनीज का। अब जो लोग ऐसे सोच रहे थे, क्या वो लोग तालियां बजाना चाहते हैं मेरी क्लास में? जो लोग ऐसे सोच रहे थे कि मैम क्या पढ़ा रही है, आई बात समझ में? तो शाहरुख और काजोल when they were sitting together and having food, that is nothing but a Latin word from which the company word is derived. Com means together, panis means food. ठीक है, इसी तरीके से याद हो सकता है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आपको पता होना चाहिए। They used to have food together, discuss business ideas, and then do what? Then they used to do what? They used to start the businesses together if they were like-minded. अब ये तो हो गया जनरल मीनिंग, अभी भी हमको मीनिंग क्लियर नहीं है क्योंकि ये तो हमने बेस पढ़ा कि कंपनी वर्ड आया कहां से। चलो अब हम जाते हैं लॉ पे, ठीक है, अब हम जाते हैं लॉ पे। लॉ क्या कहता है? लॉ में कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन, है ना, कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन। क्या कोई छोटा सा भी गैस कर सकता है कि कौन सा सेक्शन होगा? कौन सा सेक्शन होगा? कोई छोटा सा गैस कर सकता है? ऐसे ही करो, वाइल्ड गैस। मैंने जो स्टोरी सुना है उसमें मैंने वो सेक्शन नंबर बताया है अलग तरीके से। नो, यस जतिन, बिंगो बिंगो वैष्णवी, 2 सबसेक्शन 20, 2:20 पे दोनों मिलते थे। सेक्शन इज व्हाट? 2 सबसेक्शन 20। भाई बहुत सिंपल स्टोरी है, हमको एग्जाम के हिसाब से सब कुछ याद होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, भाड़ में गया किस तरीके से याद करा है। थैंक यू सो मच फॉर योर एनकरेजमेंट। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 डिफाइंस द टर्म कंपनी। अब डेफिनेशन सुनना, बहुत डिफिकल्ट है बच्चा लोग, डेफिनेशन बहुत टफ है, सारी आईज हियर, एवरीवन शुड लेंड मी योर ईयर्स। ठीक है, अब सुनो, व्हाट इज कंपनी? कंपनी मीन्स, कंपनी, नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है मैम, इनकॉर्पोरेटेड मतलब बताऊंगी, 1 मिनट दो मुझे बस। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट और अंडर any other previous law। ये और का है, ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ। मैम अंडर दिस एक्ट मतलब क्या कोई छोटा सा गैस करना चाहेगा? शाहरुख और काजोल कब मिले? कब मिले? तुम मिले तो जीना आ गया, सुपर। और कब पैदा हुए थे? छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, कब आई थी काजोल? कौन से साल में आई थी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अंडर दिस एक्ट मींस कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ मींस कंपनीज एक्ट 1956 या फिर इसके भी पहले के और कंपनीज एक्ट है, जैसे 1930 का एक कंपनीज एक्ट है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज एक्ट है। क्या आपको डेफिनेशन भी याद हो गई? अभी तो मैंने सिर्फ बुकिश बात करी, अभी तो मुझे मतलब समझाना है आप लोगों को, लेकिन क्या आपको डेफिनेशन याद हो गई? कंपनी comes from a Latin word com, which means to have together, and panis, which means to have food together. Company is company incorporated. It is defined under section 2 subsection 20. It means company incorporated under this act
or under any other previous law. मैम सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बस ये इनकॉर्पोरेटेड वर्ड का मतलब नहीं समझ आया। कितने लोग हैं मेरे साथ जिनको नहीं समझ आया, जिनको नहीं पता इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या? बहुत सिंपल मैन लैंग्वेज में बताती हूँ। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है रजिस्ट्रेशन। मैम कंपनी को कहाँ रजिस्टर करना पड़ता है? बेटा कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ठीक है। यू आर सपोज टू रजिस्टर इट विथ होम, विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। आ गई बात समझ में? आपको किसके पास रजिस्टर करना पड़ेगा? आरओसी। मैम ये आरओसी कहाँ पाए जाते हैं? ये हर स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ स्टेट है इंडिया के जहां पे दो दो आरओसीज भी है, ठीक है। नहीं तो हर स्टेट में जनरली एक आरओसी है। जैसे मैं बैठी हूँ अभी मध्य प्रदेश स्टेट में, यहाँ का आरओसी है आरओसी ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में है यहाँ का। अगर मध्य प्रदेश में किसी को कंपनी बनानी है, रजिस्टर करनी है, इनकॉर्पोरेट करनी है, तो उसको आरओसी ग्वालियर के पास सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है जो मैंने पढ़ाया? से यस और नो, से यस और नो। जल्दी से यहाँ पे मुझे मैसेज करके लिख दो नीचे कि क्या आपको यहाँ तक की सारी बात समझ आई या नहीं आई। डिड यू अंडरस्टूड? यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। मैम ये तो बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है, क्योंकि जहां शाहरुख, काजोल, केसी केएल आया, सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ आ गया। लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है कंपनी के मीनिंग। मुझे समझ नहीं आया कि कंपनी क्या है। कंपनी क्या है मैं बताती हूँ बेटा। कंपनी क्या होता है? एक बंदा आया, ठीक है, एक बंदा आया, बड़ा अच्छा सुंदर सा बंदा बना दो, हंसता हुआ, नूरानी चेहरा, ठीक है, बाल थोड़े मेरे जैसे है, कर्ली बाल, ठीक है। अब ये जो बंदा आया है, इसने बोला मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है भाई, ठीक है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। किसी ने बोला सोल प्रोप्राइटरी फर्म बना लो, इसने बोला भाई बना सकता हूँ, लेकिन ये बताओ सोल प्रोप्राइटरी में पैसा किसको लगाना पड़ेगा? ठीक है, ये शाहरुख खान है हमारा, है ना, ये शाहरुख है। शाहरुख के बाल इतने गंदे बना दिए मैंने, अच्छी, ठीक है। शाहरुख ने पूछा भाई मुझे ये नहीं पता है कि बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर में पैसा किसका लगेगा। लोगों ने कहा आपकी खुद की कैपिटल लगेगी भाई, ये है सोल प्रोप्राइटरी फर्म। सोल मतलब क्या? खुद का ही पैसा आपको डालना पड़ेगा, योर ओन कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अच्छा प्रॉफिट्स कौन लेगा? शाहरुख ने पूछा। तो सबने कहा भाई पैसा आपका, प्रॉफिट्स आपके। ओह तो फिर रिस्क किसकी है भाई? शाहरुख ने कहा, शाहरुख ने पूछा रिस्क किसकी है? आंसर करा भाई रिस्क भी आपकी है। कल को अगर ये बिजनेस में मुझे लॉस होता है तो किसे बेयर करना पड़ेगा? मुझे खुद को बेयर। नहीं नहीं भाई ऐसा बिजनेस तो मुझे नहीं चाहिए, शाहरुख ने बोला। शाहरुख ने बोला अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं पार्टनरशिप फॉर्म बना लूं तो? बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लो, आप पार्टनरशिप फॉर्म बना लो। फिर अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे पार्टनर, यहाँ पे कैपिटल कौन लगाएगा? यहाँ पे कैपिटल लगाएंगे भाई पार्टनर्स। अच्छा मैं और काजोल दोनों लगाएंगे, चलो ठीक है, दो लोग तो हो गए, एक की जगह दो लोग डाल रहे हैं पैसा। चलो प्रॉफिट्स किसके हैं? प्रॉफिट्स भी दोनों पार्टनर के हैं, ठीक है। शाहरुख भी प्रॉफिट मिलेगा और काजोल की, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। रिस्क भी डिवाइड हो गई, ठीक है, रिस्क भी कौन लेगा? दोनों पार्टनर्स लेंगे, शाहरुख भी लेगा, काजोल भी लेगा। लेकिन अगर सपोज पार्टनरशिप फर्म के पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए है और उनकी लाइबिलिटी 10 करोड़ की है, मतलब उनको बाजार में 10 करोड़ रुपए पे करना है, तो बाकी 9 करोड़ का क्या होगा? तो उन्होंने बोला 9 करोड़ रुपए तो आपको अपने घर से लाने पड़ेंगे साहब, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। इतने में काजोल आई, बोले क्या मुझे घर से पैसा लाना पड़ेगा? मतलब मेरी ज्वेलरी, मेरी कार ये बेचना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे पार्टनरशिप फर्म भी नहीं चाहिए। सो दे रिफ्यूज्ड टू फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म। किस कारण से? सिर्फ इसी कारण से।
अब उन्होंने बोला चलो फिर एक और ऑप्शन है कि बना लो भैया क्या, कंपनी। अब उन्होंने बोला कंपनी में कैपिटल किसकी होगी, उन्होंने बोला शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स मतलब जो जो पैसा डालना चाहे कंपनी में। शाहरुख बोला अरे वाह, करण जौहर भी मुझे कह रहा था कि वो पैसा डालना चाहता है अगर मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं तो करण जौहर, शाहरुख और काजोल, वाह 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 वाह, 3 लोग हो जाएंगे हम तो, और मैं 2-4 लोगों को जुगाड़ लूंगा शेयर। प्रॉफिट्स किसका, उसने बोला प्रॉफिट्स तो कंपनी का, कंपनी का प्रॉफिट। लॉस किसकी, बोले कंपनी की। अगर कंपनी के पास, अगर कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए है और लाइबिलिटी 10 करोड़ की है तो डिफरेंस 9 करोड़ क्या मुझे घर से लाना पड़ेगा, उन्होंने बोला नहीं, आपको घर से नहीं लाना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ रुपया है तो आप सिर्फ 1 करोड़ की लाइबिलिटी पे करोगे, बाकी के सामने हाथ जोड़ के बोल सकते हो, आप जा सकते हो, नमस्ते, आपको हम पैसा नहीं देंगे। उसने कहा वाओ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पैसा मैं डाल रहा हूँ, प्रॉफिट कंपनी का है, मुझे क्या मिलेगा एज ए शेयर होल्डर। बोले भाई मिलेगा ना, आपको मिलेगा डिविडेंड, ठीक है, हर साल जो प्रॉफिट्स है इसमें से एक हिस्सा आपको दे दिया जाएगा क्योंकि आपने कंपनी में पैसे डाले हैं, तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड्स। क्या ये लिमिटेड होता है, नहीं, आप जितना चाहो उतना डिविडेंड ले लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। फिर उसने बोला, उसने पूछा ठीक है और क्या बेनिफिट होगा, भाई लोग करोड़पति अरब, आप तो अरबपति हो लेकिन लोग अरबपति ऐसे तो बने, शेयर्स होते हैं उनके पास कंपनी के, आज वो शेयर भले 10 रुपए का है लेकिन आगे जाके इसकी वैल्यू 1,000 रुपए भी हो जाती है, और क्या हो जाएगा, आपको ये अप्रिसिएशन मिल जाएगा आपके कैपिटल। उसने बोला वाओ, चलो लेट्स फॉर्म अ कंपनी। कैसे बनेगी ये कंपनी कैसे बनेगी ये कंपनी, तो उसने बोला आपको इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा भाई, मुझे इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा। कैसे होता है इनकॉर्पोरेशन, कुछ नहीं, कुछ फॉर्म्स होते हैं भाई, और वो फॉर्म्स आपको फाइल करने पड़ेंगे किसके पास, आरओसी के पास। जैसे ही आप फॉर्म्स फाइल कर दोगे आरओसी के पास, ठीक है, कंपनी को क्या हो जाएगा, गुड आफ्टरनून रक्षा, यू आर लेट, यू आर लिटिल लेट, अब लेट हो क्लास में, चलो एनीवेज अभी सुन लो, समझ लो, जितना समझ सकते हो उतना समझने की कोशिश करो, ठीक है, कल से लेट मत होना क्लास में, ठीक है, ट्राई एंड बी ऑन टाइम। चलो, अब इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म बेसिकली आपको सबमिट करेंगे आरओसी के पास, आरओसी आपको देगा सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट का नाम क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये हो गया कंपनी का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, दे विल सिंग द सॉन्ग फॉर द कंपनी ऑन दिस डे, ठीक है, आ गई बात समझ में, कोई बात नहीं रक्षा, इट्स ओके, अगर नहीं आएगा रिकॉर्डिंग देख लेना, मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक नहीं 100 बार, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी, चिंता मत करो। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे आप पैदा होते हो, मैं पैदा हुई थी, पापा ने मेरे लिए बर्थ सर्टिफिकेट लिया होगा, राइट, ऐसे कंपनी के पैदा होने पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया कंपनी का, कंपनी, ठीक है, कंपनी और उसके मेंबर्स शाहरुख खान, काजोल एंड करण जौहर सब अलग अलग है, कंपनी अलग, ये लोग अलग, तो ऐसा हुआ ना, तभी तो यहाँ क्या हुआ, प्रॉफिट कंपनी का, लॉस कंपनी की, पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी की, सब कुछ कंपनी का ही है। आई बात समझ में, डिड यू अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज कंपनी, सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मैम आर्टिफिशियल क्यों, भाई आप और मैं, हम लोग पैदा होते हैं, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ वी टेकिंग अ बर्थ, बट कंपनी का बर्थ कैसे हुआ, थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस, थ्रू फॉर्म्स, थ्रू लॉ, इसलिए आर्टिफिशियल लीगल एग्जिस्टेंस है इसका, करेक्ट, देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो इसके कोई हाथ पैर नहीं है, इसके कोई कुछ भी नहीं है कि हम, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहते हैं, ठीक है, इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इसके मेंबर्स से ये अलग है, ये हमारे फीचर्स है, अभी हम फीचर्स पढ़ने ही वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, शेयर होल्डर्स और उसकी कंपनी अलग अलग है। मैम कंपनी मैनेज कौन करता है, कंपनी मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी,
क्या सारे शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर बनना पड़ता है? आंसर इज नो। इनमें से कोई या एकदम से अलग कोई लोग बन सकते हैं। जैसे सपोज काजोल ने बोला मैं तो डायरेक्टर बनूंगी, शाहरुख और करण जौहर ने बोला ना रे ना, हम तो सिर्फ पैसे डालेंगे, हमको कोई झंझट नहीं चाहिए। काजोल ने बोला अच्छा, तो मैं काम करती हूँ, रानी मुखर्जी मेरी कजिन सिस्टर है, उसको मैं क्या करती हूँ, मैं उसको बिल्ड डायरेक्टर बना देती हूँ। सबने कहा ठीक है, तुमको अगर वो अच्छा लग रहा है तो ऐसा कर लो, अगर तुमको लगता है रानी कैन हेल्प यू इन दी वर्क तो कर लो। तो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मैनेज करते हैं कंपनी को, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे शेयर होल्डर्स जाके क्या बने, डायरेक्टर बने कंपनी। क्या आपको यहाँ तक के सारे पॉइंट्स क्लियर है या नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। क्या आपको यहाँ तक समझ आया है? आया? क्लियर है? रक्षा तो लेट आई है, अच्छा ठीक है, लास्ट का कोशिश करा है उसका समझने का। बाकी लोग कहाँ हैं? अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, फीचर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, हम कंपनी के फीचर्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना पहले फीचर्स, फिर मैं लेके जाऊंगी और फिर मैं एक ऐसा एंक्रोनिम दूंगी कि सारे के सारे पॉइंट्स एक गो में याद हो जाएंगे, एक गो में। ठीक है, हाँ, डायरेक्टर्स की लिमिट होती है, जब हम डायरेक्टर्स पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊंगी रक्षा। अभी हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अभी लिमिट्स नहीं बताऊंगी। मिनिमम भी होती है, मैक्सिमम भी होती है, सब टाइप की लिमिट होती है कंपनी में। अभी धीरे धीरे सब पढ़ाऊंगी, सारी चीजें क्लियर कराऊंगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ठीक है, हमने पढ़ा है व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कंपनी। सो कंपनी कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड कौन सा है? कॉम, विच मीन्स टुगेदर, एंड पनीस which means to have food together. ठीक है, पनीस which means what? To have food together. Olden times में क्या होता था? People used to talk while having their food together and come up with business ideas. That's how the company word came. कंपनी, ठीक है, सेक्शन कौन सा है? क्या कोई बताएगा मुझे? सेक्शन बताएगा क्या? सेक्शन बताओगे क्या? सेक्शन याद कराया था मैंने, कौन सा है सेक्शन? जल्दी बोलो। वेरी गुड, 2 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा जतिन आपको, 2 सबसेक्शन 20। 2:20 पर शाहरुख और काजोल मिले, 2:20, 2:20 पे। ठीक है, कंपनी इज डिफाइंड। व्हाट इज कंपनी? व्हाट इज कंपनी? कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। Incorporated, correct Anjali, very good. Incorporated under this act or under any other previous act. ठीक, आ गई बात समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड। अंडर दिस एक्ट मतलब लिखी दिया अंजलि ने, बहुत ही बढ़िया अंजलि, मजा आ गया, मतलब पूरी पिक्चर याद हो गई है आपको। ठीक है, 1956। जो लोगों ने लेट ज्वाइन करा है, मेरी स्टार्टिंग की स्टोरी जरूर सुन लेना, पिक्चर जरूर सुन लेना, उसी से आपको ये सब चीजें याद होगी। ठीक है, ये सारा याद होगा। क्या फर्स्ट रिवीजन क्लियर है आपको? देखना मैं कितनी बार क्लास में रिवाइज करूंगी कि सब कुछ क्लास में ही रट दोगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स। अभी मैं आपको एकदम बेसिक करा देती हूँ, कल से मैं आपको पूरे फीचर्स को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट से समझेंगे। ठीक है, पूरे ऐसे डायग्राम के साथ हम समझेंगे, तो बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा। फीचर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के क्या फीचर्स है, ये हम की कोशिश करें। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, शाहरुख खान, काजोल, करण जौहर, ये हमारी मूवी में कौन है? ये लोग कौन है हमारी मूवी में? ये लोग क्या कोई बता सकता है हमारी मूवी में इनका क्या रोल है? ये कौन है ये लोग? हु आर दीज पीपल? हु आर दीज पीपल? हमारी मूवी में ये कौन है? कंपनी के क्या है ये? कंपनी के क्या है? शाहरुख खान, काजोल एंड करण जौहर क्या है हमारी कंपनी में, हमारी मूवी में? कंपनी के क्या है ये? वेरी वेरी गुड, दे आर द शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, एक कंपनी बनाई। ठीक है, कंपनी का नाम हमको सबको पता है, कभी कंपनी कभी लॉ, कभी कंपनी कभी लॉ। इन लोगों ने सबने पैसा डाला कंपनी में। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है?
ठीक है। सो जय मनी KCKL में इन लोगों ने डाला। बदले में KCKL इनको क्या दे देगा? बदले में KCKL इनको क्या क्या दे देगा? दे विल गिव शेयर्स टू दीज पीपल। कोई डाउट? कोई डाउट? क्या ये बात आपको समझ आ गई है? ठीक है। बदले में क्या हो जाएगा? शेयर्स दे दिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, KCKL के शेयर्स। आ गया पैसा। ठीक है, यहाँ पे सपोज इन सब ने मिलाकर 1 करोड़ रुपया डाला KCKL। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपया KCKL में आ गया। अब KCKL को इसमें प्रॉपर्टी खरीदनी थी। उनको एक लैंड खरीदना था। ठीक है, प्लस उनको कुछ मशीन्स खरीदनी थी। ठीक है, दे वर सपोज टू बाय सम मशीन्स, है ना? मशीन खरीदनी थी। अब इसके लिए जो टोटल पैसा चाहिए था वो चाहिए था 9 करोड़। टोटल पैसा जो चाहिए था वो चाहिए था 10 करोड़ रुपया। ठीक है, 10 करोड़ रुपीज वॉज रिक्वायर्ड टू बाय द प्रॉपर्टी एंड मशीन। KCKL ने क्या किया? दे टुक अ लोन। ठीक है, वो बैंक के पास गए। ठीक है, दे वेंट टू द बैंक, है ना? बैंक के पास गए और बैंक से उन्होंने क्या किया? 9 करोड़ रुपए का लोन लिया। ठीक है, सो 9 करोड़ आ गए बैंक से, 1 करोड़ इनसे आ गए, 10 करोड़ रुपए आपके पास टोटल आ गए। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने खरीद ली, KCKL ने खरीद ली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसके नाम पे मिली? KCKL के नाम पे। ठीक है, सो प्रॉपर्टी वाज परचेज्ड बाय KCKL इन इट्स ओन नेम। अब ओन नेम में मतलब किसी को तो साइन करना पड़ेगा ना। प्रॉपर्टी तो खरीद ली आपने, लेकिन कोई तो पेपर साइन करेगा ना भैया कंपनी के। हु विल बी साइनिंग द पेपर्स? ठीक है, हु विल बी साइनिंग द पेपर्स? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वुड साइन द पेपर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के बिहाफ पे, क्योंकि कंपनी खुद तो साइन कर नहीं सकती। आगे बात समझ में? कंपनी खुद तो साइन कर ही नहीं सकती, है ना? तो डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी वुड बी साइनिंग दिस पेपर्स। क्या ये इतनी स्टोरी क्लियर हुई? तो अभी तक क्या हुआ? 10 करोड़ रुपए हमने लिए, 9 करोड़ बैंक से ले लिए, 1 करोड़ हमारे शाहरुख, काजोल और करण जौहर दे गए। ठीक है, इसके बेसिस पे आपने खरीद ली प्रॉपर्टी और मशीनरी। किसके नाम से है ये दोनों? ये दोनों कंपनी KCKL, कभी कंपनी कभी लॉ के नाम से ही ये क्या हुई है? दोनों की दोनों बाय हुई है। आ गई बात समझ में? क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? अब KCKL ने बैंक को EMI नहीं पे करी। They didn't pay the EMI. They couldn't pay the EMI. तो बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? तो बैंक क्या करेगा बेटा? बैंक विल फाइल अ केस कि भाई ये जो KCKL है ये हमारा पैसा नहीं दे रही है। KCKL के ऊपर वो केस लगा देंगे, राइट? एंड देन KCKL ने क्या किया? प्रॉपर्टीज को बेचकर बैंक का लोन चुका दिया। ठीक है, तो स्टोरी मेरी समझ आ गई। 2:20 पे शाहरुख खान और काजोल मिले 2013 में। उन लोगों ने क्या करा? साथ में खाना खाया। ठीक है, खाना खाने के बाद दे डिसाइडेड लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस। तो उन्होंने बिजनेस का नाम रखा KCKL। ठीक है, KCKL बिजनेस में शेयर होल्डर्स कौन कौन थे? शाहरुख, काजोल और करण जौहर। तीनों ने मिला के 1 करोड़ रुपया दिया, चिल्लर फॉर देम। ठीक है, और उनको कंपनी ने शेयर इशू कर दिया। KCKL को 10 करोड़ की प्रॉपर्टी और मशीनरी खरीदनी थी, तो वो बैंक के पास गई और बाकी 9 करोड़ का लोन ले लिया। 10 करोड़ मिलाकर उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मशीन खरीदी जो उनके नाम पे ही थी। और क्या हुआ? उसके जो डायरेक्टर्स थे, ठीक है, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट साइन कर। ये आ गई पूरी स्टोरी। ठीक है, EMI को शॉर्ट में, EMI कुछ नहीं होता है, मतलब आपको हर महीने बैंक को लोन का किस्त चुकानी पड़ती है ना, उसको हम EMI कहते हैं बेटा। ठीक है, जो बैंक की किस्त चुका, 9 करोड़ का लोन लिया तो एक साथ तो 9 करोड़ वापस नहीं करोगे, हर महीने थोड़ा 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 पैसे देते हो ना, उसको हम EMI कहते हैं। गुड, वेरी गुड, यू आस्क्ड द क्वेश्चन हियर ओनली। कोई डाउट लेके घर नहीं जाएगा। ठीक है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, EMI, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, आगे बात समझ में? क्लियर? छोटी चीज अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछेंगे यहाँ। आ गई बात समझ में? ठीक है, ओके। तो ये हो गए हमारे एक्चुअली फीचर्स ऑफ कंपनी। यस, आई एम नॉट जोकिंग, दे आर फीचर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, अब देखो, अगर फीचर्स में जाऊं, यहाँ पे समझाती हूँ, है ना?
बैंक से पहले क्या हुआ, प्रॉपर्टी बैंक किसके नाम से, यहाँ पे प्रॉपर्टी है केसीकेएल के नाम से। सो केसीकेएल हैज ऑल द राइट्स टू कीप द प्रॉपर्टी इन देयर नेम, ठीक है, टू बाय द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ये हो गया उनका पहला फीचर। फर्स्ट फीचर क्या हो गया, टू बाय द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, ठीक है। सेकंड, अगर इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी, सो टू कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। स्यू का मतलब क्या होता है, केस फाइल करना, एंड बी स्यूड मतलब उनके अगेंस्ट केस लगना, ठीक है। स्यू मतलब केसीकेएल केस लगा रही है, बी स्यूड मतलब बैंक केस लगा रही है। अगर कोई आप पे केस लगा रहा है तो उसको हम कहते हैं बी स्यूड। स्यू मतलब आप उनको केस लगा रहे हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, ठीक है। अब इसके शेयर होल्डर्स और कंपनी अलग अलग है, इसको हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। क्या शाहरुख नहीं, क्या मिस्टर एक्स के जो भी एक शेयर होल्डर था यहाँ पे, उसके मरने से कंपनी बंद हो जाएगी क्या, उसके मरने से कंपनी बंद हो जाएगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि कंपनी और मेंबर्स सेपरेट है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सेम, दे आर सेपरेट, ठीक है। सो देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन दिस। शाहरुख काजोल करण जौहर आपस में झगड़ लिए और चले गए, और उनकी जगह वो शेयर्स किसी और ने ले लिए, ठीक है। क्या कंपनी बंद हो गई, आंसर इज नो। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन, ठीक है। तो ये बेसिक था, देखो। फर्स्ट है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, ठीक है। उसके बाद सेपरेट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स इजीली किसी और को भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, ये मैं बता दूंगी, समझा दूंगी बाद में। सेपरेट मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट सेपरेट है हमारे एग्जाम्पल में, देखो एग्जाम्पल में देखो, सेपरेट है ना मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स अलग है, शेयर होल्डर्स अलग है, तो मैनेज कौन कर रहा है, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स आर नॉट सेम, दे आर सेपरेट पीपल। ये हो गए फीचर्स ऑफ कंपनी। कल इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट क्या आपको ये चार्ट क्लियर है? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट। टेक बहुत गंदा हो गया अब तो, बट टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि एक बार और इसको चार्ट को अपनी बुक्स में अच्छे से बना लेना। क्या आपको समझ आया जो मैंने पढ़ाया या नहीं? डिड यू अंडरस्टूड, यस और नो? कैन नॉट टेक स्क्रीनशॉट्स? किसी और के फोन से ले लो, 1 मिनट करके किसी और के फोन से ले लो बेटा, ले तो लो। घर पे कोई होगा, आसपास कोई होगा, किसी का भी फोन ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुमको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। कल हम ये सारे कॉन्सेप्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ, सैल्मन वर्सेस सैल्मन, देखो मैंने कितना अच्छा चार्ट बनाया सैल्मन के लिए, ठीक है। सैल्मन वर्सेस सैल्मन, हम बहुत, ये रहा सैल्मन, ठीक है। सैल्मन का केस हम बहुत डिटेल में कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बच्चा लोग, समझ आया आज की क्लास या नहीं आई? डिड यू अंडरस्टूड द क्लास? क्लियर है? चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आई विल लेट यू नो व्हेन इज इट, मोस्टली कल होगी, मोस्टली आई विल लेट यू नो, ठीक है। गाइस एंड गर्ल्स, देयर इज अ स्पेशल रिपब्लिक डे रिपीटिंग अगेन ऑफर व्हिच इज गोइंग ऑन, ठीक है। आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक अ कॉम्बो ऑफ CSEET प्लस CS एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, व्हिच इज फॉर 1.5 ईयर। अगर 1 साल का ले लोगे तो 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा, प्लस यू गेट 10% ऑफ यूजिंग माय कोड दैट इज नेहा CS, ठीक है। अगर यू यूज माय कोड then please ping me on the social media platforms. I will give you access to my exclusive doubt solving group, जहां पे मैं I would be sharing with you weekly trackers. I would be doing lot of quiz for you guys, ठीक है। हम क्विज करने वाले होंगे कि किस क्वेश्चंस पे जनरली क्विज हम सॉल्व करने वाले होंगे। उसके बाद टाइम टेबल्स दूंगी, उसके बाद डेली ज्ञान दूंगी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आज जो पढ़ा उसके बेसिस पे एक टॉपिक आपको दे दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू फॉर योर encouragement.
ठीक है, it matters a lot. And also please follow me on the community. My name is Neha Ladha. वहां पे मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी, आज जो पढ़ाया है इसके सारे नोट्स मैं वहां पे अपलोड आपको कर दूंगी, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट, इफ यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन यूज माय कोड, और कोड यूज, मेरा कोड है नेहा CS। कोड यूज करने के बाद प्लीज मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, आई गिव यू एक्सेस टू माय एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग ग्रुप, जहां पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर पाओगे, ओके। चलो, with that we end the class. Thank you so much guys and girls. Bye bye, see you. I will let you know when is your next class. Bye bye. Bye.